जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते पॉजिटिव थिंकिंग रख, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही बोलो। मेरे गुरु जी महाराज संगत जी का ये मेरे लिए मैसेज था, और पता नहीं किसके लिए होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ ना संगत जी। गुरु जी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। कहते हैं गुरु जी कि तू ना इन्ना सोचा कर। संगत जी पता नहीं ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਲੋਕੇਜ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਾਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ ਤੇ ਦੋ ਨਾਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਨਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਨਵਾ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਲੇਸ਼, ਬਟ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਆ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਨਾਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਬਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਊ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਾਵਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਗਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਜਗਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਘਰ, 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੰਵਾਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੰਜਰੋ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹ 'ਚ ਬਲੈਕ ਡੋਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਵੰਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟ ਇੱਕ ਰੂਮ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੇਤੀ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ और संगत जी फिर ना दिवाली के रिलेटेड गुरु जी महाराज ने इतने सारे सत्संग सुनवाए कि अलर्ट हो जा, कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया। दिवाली पे जितने भी संगत जी ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, और बहुत बहुत सत्संग सुनवाए संगत जी। और मुझे संगत जी पूरे फैमिली के लिए सत्संग सुनवाए थे। यही कि फिर संगत जी ऐसे हुआ, मुझे करंट लगा। मैंने लाइटें लगा रही थी संगत जी, तो मुझे करंट लगा। ठीक है, लाइट्स लगा दी थी मेरे ससुर जी और जेठ जी ने, पर मैं सेट करी थी अच्छी से, वो सेट नहीं करी थी उन्होंने लाइट्स, तो मैं सेट करके लगा रही थी, तो मुझे करंट लगा। फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ, मेरे बेटे के हाथ पे दिवाली वाले दिन दीवे से
उंगली पे जल गया। और हस्बैंड अंकल को तो गुस्सा ही बहुत आता है, उन्हें गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं वो गुरुजी करते हैं संगत जी। कलेश भी थोड़ा बहुत हुआ पर छोटे में कटा संगत जी। तो फिर छोटी दोनों नातियाँ गुरुजी की भी बहुत थकी टूटी ऐसे थी कि गुस्सा कर रहे थे, मम्मा आप फ्री नहीं हो रहे संगत जी, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक के कारण सारे काम सुबह से शुरू होती थी मैं, रात रात के 8 बज जाते, जबकि सब कुछ करती थी, सब कुछ खाना बनाना, सफाइयाँ, कपड़े धोने, सब कुछ ए टू जेड काम करके भी फिर भी मैं तैयार नहीं हो पाई संगत जी। रात को 9 बजे जाकर तैयार हुई। फिर जाकर बच्चे भी इतना बोल रहे थे कि मम्मा तो आप तैयार नहीं होते, ये नहीं करते फ़ोन टाइम से। फिर मेरे हस्बैंड भी बोलने लग गए संगत जी। फिर अब चलो मैंने पहले हम गए 7 साढ़े 7 गुरुद्वारे मत्था टेकने, वहाँ पर 2 दिए लगाए, मोमबत्तियाँ लगाई संगत जी। तो फिर वहाँ प्रसाद चढ़ा कर आए गुरुद्वारे में। फिर बाबा जी ने भी हमें प्रसाद दिया। तो 5 मिनट बैठे गुरुद्वारे में, फिर हम घर आ गए संगत जी। फिर मैंने लक्ष्मी माँ की पूजा की संगत जी। मुझे करनी तो नहीं आती, फर्स्ट टाइम मैंने जो भी की, पर गुरुजी महाराज और मेरी माता रानी ने स्वीकार की। गुरुजी कह रहे सी, अगले दिन गुरुजी ने मुझे मॉर्निंग टाइम सत्संग सुनवाया कि तेरा प्रसाद स्वीकार हो गया है ऊपर। संगत जी मैं भूल गई कौन सा वर्ड था, कि तेरा प्रसाद स्वीकार हो गया है, शायद पता नहीं स्वर्ग में कि पता नहीं क्या, यूनिवर्स, सब भूल गई, सॉरी। तो और माता लक्ष्मी तेरे घर विराजमान हो गई है, शुक्राना। गुरुजी महाराज भी आए थे मेरे घर संगत जी। और तो फिर संगत जी मैं फिर लक्ष्मी माँ के लिए जो जो सामान माँ के आगे, लड्डू, चावल के लड्डू और चने के लड्डू रखे, मीठे में मिला के रखा माता के आगे। फर्स्ट टाइम की मैंने पूजा संगत जी। मैंने माता की वो हांडी तो नहीं लेके आई, क्या बोलते हैं हांडी शायद बोलते हैं, मम्मी भी बोल रहे थे। मैं छोटी सी माता जी की माता और गणेश जी की मूर्ति बनी हुई थी मिट्टी की, वो लेकर आई थी। तो जिस दिन धनतेरस था उस दिन मैं झाड़ू भी 2 लेकर आई थी। उसी दिन माता की मूर्ति और गणेश जी की लेकर आई थी। उस दिन मैंने कोई पूजा नहीं की, बस जोत जगाई थी संगत जी। जोत भी शायद जगाई कि नहीं, उस दिन मैं मंदिर गई थी, मंदिर जोत जगा कर आई थी माता लक्ष्मी और विष्णु जी के आगे। भोग लगाया था गुलाब जामुन का वहाँ। और माता काली के माता काली जी के आगे श्रृंगार का सामान, माता की चुनरी और भोग। मेरी बेटी कहती मम्मा मैं लगाऊंगी, तो मैंने कहा लगा दे, ठीक है। उसने भोग लगाया, वो ना वहाँ से गिर के नीचे चिराग में ही लग गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा गुस्सा तो किया था अपनी बेटी के कि अच्छे से नहीं रख सकती थी, तो वो दिए में जाके गिर गया। तो फिर मैंने कहा चलो उठा के रख दो। तो फिर संगत जी, फिर मैंने दिया दोबारा से जगाया, मैंने सोचा कोई कष्ट था वो कट गया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया। फिर बजरंग बली जी के आगे भी मैंने संदूर चढ़ाया था और बजरंग बली जी के आगे दिया जगाया था। पहले मैंने गलती से संगत जी में देसी घी लेकर गई थी, देसी घी का ही दिया जगा दिया मैंने। माता काली माता के आगे भी देसी घी का दिया ही जगाया था, और विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आगे भी देसी का घी का जगाया था, और मैंने बजरंग बली जी के लिए वो ही तैयार कर लिया। तो फिर मुझे याद आया मैं तो चमेली का तेल लेकर आया, फिर मैं उसी में देसी घी में ही चमेली का तेल डालकर बाकी तेल वहीं पे रख के आ गई थी संगत जी बजरंग बली जी के चरणों में। और फिर जो बाकी मिठाई बची थी, एक कान्हा जी के आगे रख दी, एक शिवलिंग पर रख दी, और जो 2-3 पीस बचे थे वो मैंने पंडित जी के स्थान पे रख दी। तो फिर संगत जी बहुत मतलब गुरुजी महाराज जी
मेरे पति पे जो कष्ट एक्सीडेंट और मारण क्रिया के थे ना सत्संग, तो उसमें ही ये उपाय बताया था संगत जी। तो अभी भी बता रहे हैं शनिवार को। मैं संगत जी ऐसे होता है, शनिवार को मैं जब गई वहाँ, तो मैं ना घर पे ना एक डिब्बी में काले माँ की दाल, काले तिल, काली मिर्च और सरसों का तेल डालकर डिब्बी में रखा था कि मैं ये शनिदेव जी के आगे डाल दूंगी, शनि देव जी के ऊपर। तो संगत जी वो डिब्बी घर पे ही रहेगी। एक बार ऐसे हुआ, एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ। मैं अपने बेटे के हाथ लगवा कर माँ की दाल मैंने सोचा चलो चढ़ा दूंगी, तो उस दिन भी घर पे ही रह गई थी। तो शायद फिर आज गुरुजी ने उपाय बताए हैं मुझे शनिवार के, कि जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, रुकावटें आ रही हैं संगत जी, उससे रिलेटेड, पढ़ाई से, बच्चों के रिलेटेड, कि एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर ओम हरीम हरीम लिख के बजरंग बली जी के चरणों में रख के फिर घर ले आना है, और फिर बच्चों के पढ़ाई के बुक्स में रख देना है, ठीक है। और दूसरा उपाय एक ये था कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जगाना है सरसों के तेल का, और उसमें हाँ बस ये। फिर घर के बाहर काली माँ और काले तिल डालकर, सरसों का तेल डालकर दिया जगाना है अपने घर के बाहर संगत जी, हर शनिवार करना है। जो घर में प्रॉब्लम्स, क्लेश, दिक्कत, काम में रुकावट, इसलिए ये उपाय है। तो और संगत जी बस ये है उपाय 3। तो और गुरुजी महाराज मुझे ये सत्संग सुनवा रहे थे कि मैंने तेरे कष्ट, तेरे परिवार को कैसे बचाया है, ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर संगत जी। सच में गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली थी महाराज जी की, तो दिवाली वाले दिन संगत जी ऐसे भी हुआ था कि मैं छत साफ कर रही थी, तो मेरी बड़ी बेटी जो बड़ी गुरुजी की नाती है, वो मेरे साथ छत साफ करवा रही थी संगत जी। आप मानोगे नहीं, मैं छत बड़ी थी, 250 गज का हमारा घर है, 250 हाँ जी। तो आधी है, मतलब हाफ छत है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज मुझसे नहीं होगी, ऊपर से धूप इतनी थी, गर्मी थी। तो मैंने ना सोचा चल आधा करते हैं, आधा हम शाम को कर जाएंगे। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप मुझे हिम्मत दो, शाम को फिर मैं कैसे आऊँगी, मैं तो नहा धोकर बैठ जाऊँगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरा छत घंटा तो लगा, बट बड़ी थी तो लगना ही था। इतना गंदगी थी ना, काफ़ी देर से छत साफ नहीं हुई थी। सब गुरुजी महाराज ने मुझे हिम्मत देकर छत साफ करवाई। और गुरुजी महाराज कहते कि बड़े मंदिर च भी गुरुजी महाराज सत्संग भी साथ साथ सुन रही थी कि बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज अपने सेवकों से, और वहाँ जो आते थे गुरुजी महाराज के संगत, उनसे भी झाड़ू लगवाकर उनके अंदर से अंदर क्लीन करते थे। कि तो मुझे भी ऐसे ही झाड़ू मारते मारते सत्संग में सुनवाया था गुरुजी महाराज ने उस दिन। फिर मुझे गर्मी भी आई संगत जी, शरीर को बहुत गर्मी आई, शायद मेरा भी क्लीन कर रहे थे गुरुजी महाराज। मैंने मुंह पर दुपट्टा बांधकर छत साफ की संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाए कि जिसके अंदर जिस किसी को संगत जी खिलाया पिलाया गया हो, तो उसे कैसे निकलवाया गुरुजी महाराज ने उसके अंदर से। जैसे शमशान की राख खिलाई गई, और पता नहीं क्या जिन जादू टोने, पता नहीं क्या क्या हड्डियाँ खिलाई गई। तो संगत जी उससे रिलेटेड भी मुझे सत्संग सुनवा के मेरे अंदर से भी पता नहीं कौन सी गंदगी निकाली गुरुजी महाराज ने। वो एक आंटी जी बता रहे थे कि करवा चौथ वाले दिन कि मेरे ना हस्बैंड काम पे चले गए, मेरा बेटा स्कूल चला गया। तो वो सोफे पे लेटी हुई थी दोपहर को, तो मेरे शरीर इतना हैवी हो गया था कि कुछ चीज़ें हावी हो गई उन पे, उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे संगत जी। तो
फिर क्या हुआ, वो ना वेट कर रही थी कि कब मेरा बेटा आए, और अपने पापा को फ़ोन करके बुलाए घर पे, तो मुझे वो लेके जाए हॉस्पिटल। तो उनका बेटा आया तो उसने पूछा, मम्मा क्या हो गया आपको, क्या हो गया, ऐसे ही लेटे हुए, क्या हो गया, वैसे ही लेटे हो गए। उसकी मम्मा बोल ही नहीं पा रही थी संगत जी। तो बेटे ने फिर पापा को फ़ोन किया, तो उसके पापा ने कहा मैं बिज़ी हूँ बेटा, आप किसी मम्मा को ले जाओ। तो वो बता रही थी आंटी जी कि मेरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सब मुझे देख रहे थे, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार हुआ था, पर गुरुजी महाराज ने दिवाली वाले दिन भी संगत जी मुझे डर लगा, रात को कोई चीज़ थी, और रात को कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे जब मैं डर रही थी। तो मैं अभी इतनी वीक हो गई हूँ, दिवाली वाले दिन के बाद ही बीमार हो गई थी, क्योंकि संगत जी मैं बैठी रही दिवाली वाले दिन, बैठी नहीं, थोड़ी देर बैठी, पाठ पूजा की, फिर मैं सो गई। तो मैं थोड़ा सा डरी, पर मैं गुरुजी मन में गुरुजी को याद कर रही थी। गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ भी होने नहीं दिया संगत जी। तो जो भी मेरे अंदर जो भी था सब निकाल दिया, सारे कष्ट काट दिए, सब ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया, पूरे घर से, पूरे परिवार से सारे कष्ट काटे। और फिर कल परसों मुझे एक सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके घर ना उनके चाचा ससुर की मौत हो गई, कि वो भी कुछ भी अपने आप कर नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे संगत जी। पर मेरे गुरुजी महाराज ने फर्स्ट टाइम अपनी बेटी की इतनी अच्छी दिवाली मनवाई। पहले भी मनाते थे, पर मैंने कभी लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं की थी संगत जी। हर एक चीज़ लेकर दी गुरुजी महाराज, हम मंडी गए, हम जो भी चीज़ लेने गए, ब्लेसिंग नंबर्स, ब्लेसिंग, महादेव की पिक्चर, हर हर महादेव, बजरंग बली जी, नीम करोली बाबा, और संगत जी गुरुओं पीरों फ़कीरों की भी इतनी रहमतें हैं ना, ब्लेसिंग नंबर्स और हर एक चीज़ वो लेकर दी, पटाखे बच्चों को गुरुजी महाराज ने इतने सारे लेकर दे। और संगत जी खाने पीने की कोई कमी नहीं छोड़ी, ये 4-5 दिनों में पूरा भंडारे भरे रखे गुरुजी ने, पूरे घर के फ्रिज भी नहीं खाली होने दिया, कोई कमी नहीं थी घर में संगत जी, कोई भी कमी नहीं मेरे मालिक ने रखी। हर एक चीज़ हमने फर्स्ट टाइम संडे से ड्रैगन फ्रूट भी कर लाए। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि महीने में एक बार ड्रैगन फ्रूट खाया कर, और जलेबी का भी काफ़ी बार सुनवाते हैं, महीने में एक बार जलेबी दूध में डालकर खानी चाहिए। पर संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि जलेबी लेकर आए, बट वो भूल जाते हैं। तो और संगत जी हमारे मोहल्ले में भी एक मौत हो गई थी, तो परसों मैं उनके भोग पे गई थी, वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में ये सुनवाते तो बहुत है, बहुत देर से सुनवा रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी गुरुजी का पता नहीं कब आदेश है, कब बुलाएंगे मैं नहीं जानती, मैं तो बहुत अरदासें करती हूँ गुरुजी मुझे कब बुलाओगे। और संगत जी फिर क्या हुआ, गुरुजी कहते तेरे घर दे कोल एक सत्संग आ, तो उत्थे जाना जरूर है। मैं सोचा शायद गुरुजी महाराज ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬੈਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੇਨ ਸੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ 'ਤੇ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਕ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਬੈਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, 111, 222, 333, 444 ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਵਾਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਸੁਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 3-4 ਰੈਬਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਬਿਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਬਿਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, BP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪੇਨ ਰਹੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪੇਨ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਰਟ 'ਚ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਵਰ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਜੋ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੋਬ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜੋਬ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਂਟੀਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
कैंसर रिलेटेड संगत जी बहुत बीमारियां, मैं की दसा मेरे गुरु जी महाराज का बेअंत आ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਆ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। जय गुरु जी, शुकराना मेरे मालका, हर एक दात का शुकराना, हर एक स्वास का शुकराना, हर एक दिन का, हर एक रात का शुकराना, अपनी बेटी के घर के भंडारे भरन का शुकराना संगत जी। और मैं ਜਦੋਂ भी फाइनैंशियल प्रॉब्लम तो टेंशन नहीं, गुरु जी महाराज कहते ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ हर एक चीज़ परमानेंट मिलेगी, तेरे सारे काम बनते जाएंगे, ਤੈਨੂੰ सफलता ही सफलता मिलेगी, ਤੈਨੂੰ कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शुकराना मेरे मालिक, शुकराना संगत जी। और जो भी ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ संगत जी। बहुत सत्संग सुनाते मेरे मालिक का बेअंत बेअंत शुकराना। और गुरु जी कहते तेरी लॉटरी लगन वाली संगत जी, बहुत देर तो जाती मैं गुरु जी महाराज दे चरणों नाल जुड़ी हाँ। गुरु जी कहते तेरी लॉटरी लगन वाली, मेरे बच्चे भी कहते मम्मा कद तुहाडी लॉटरी लगी, मम्मा कद तुहाडी लॉटरी लगी गुरु जी, तुहाडे नाती मैनूं इदां कहंदे सारी गुरु जी, सारी संगत जी। और तो जो गुरु जी सही टाइम बच्चों लिए आऊँगा गुरु जी दे उदों ही, पर बहुत पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं, बहुत टैरो रीडिंग दे भी बहुत सुंदर मैसेज आ रहे कि अगले हफ्ते तो तुहाडी लाइफ चेंज हो जाएगी। शुकराना गुरु जी। और अज गुरु जी का मैसेज आया सी, अमृत वेला शुकराना कर पुत्र, अज से तेरा बुरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त कर देता, अब तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी कि तू भूल जाएगी कभी तूने ऐसा औखा टाइम भी देखा था। बस कदी कदी शुकराना करना ना छड्डी। शुकराना मेरे मालका। संगत जी सॉरी, काफ़ी दिनों तो सत्संग इकट्ठे हुए सी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं बहुत लंबा सत्संग करता, प्लीज़ आंटी जी मेरा शुकराना सत्संग शेयर कर दियो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी, सरबत दा भला। वाहिगुरू वाहिगुरू। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना गुरु जी, हर वेले का शुकराना गुरु जी। इस समय रात के 9:15 बज रहे हैं, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शेयर, बेटी अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी। जब मैं अपनी भाभी के घर गई हुई थी तो उन्होंने मेरी भतीजी ने मेरे को कहा कि बुआ जी एक गुरुजी हैं। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखे पर मेरे को पता नहीं है। तो उसने ना फिर मेरे को स्वरूप ला के दिया। तो बस उस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। जो भी मेरी हर रात गुरुजी पूरी करते हैं। तो आज से ना 2014 की बात है। तो मेरे हस्बैंड अंकल की ना डेथ हो गई थी। तो एक रात मैं ना घर में अकेली थी, तो मैं सोई थी, बच्चे घर पर नहीं थे। तो मैं ऐसे लगा कि जैसे मेरे को मेरे सिर पर किसी ने हाथ रखा हो। तो गुरुजी पर उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, ना ही मेरे को पता था। तो मैं उठ के ना इधर उधर देखने लगी, तो मेरे को कहीं कुछ नज़र नहीं आया। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ रखा मेरे सिर पे। तो गुरुजी आज मेरे को वो दिन याद आता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी थे। तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटा तू रो मत, मैं हूँ तेरे साथ। तो गुरुजी का बहुत बहुत मेरे सिर पर हाथ रहा। और मेरे घर में बहुत अंकल के जाने के बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, पर फिर भी चलो ठीक है। वो क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी हुई है। उस दिन से जब से गुरुजी ने बाँह पकड़ी, उस दिन से मेरा थोड़ा थोड़ा सब ठीक हो रहा है, तो आगे भी ठीक ही होगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटी तू सत्संग सुनते, बेटे पे ये कष्ट है, तेरे बेटे पे ये कष्ट है, गुरुजी आप ही हो, आपने ही करना है, आपने ही देखना है मेरे बेटे को, मेरे को और मेरी बेटी को। आपका आपने ही ध्यान रखना है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आप मेरे साथ हो गुरुजी। आपने हमेशा मेरी बाँह पकड़ी हुई है और मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ था, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी का जो सत्संग सुनती हूँ जो भी सत्संग आता है तो वो मैं सुन लेती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु सुमन आंटी जी, मेरे को एक बात बताओ कि जब भी मैं कोई भी सत्संग सुनती हूँ तो या तो कोई बीच में वो फ़ोन आ जाते हैं
या बंद हो जाता है? क्या क्या ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है? तो गुरुजी आप मेरी नेगेटिविटी को ख़त्म करो गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ हो, मेरे को पॉजिटिव रखो बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं हमेशा पूरा कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के मैं अमृत वेला करूँ, अमृत वेला करूँ। रात को सोचती हूँ पर सुबह उठा नहीं जाता गुरुजी। तो आपने ही उठाना है, आपने ही करवाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, हर वेले दा शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी आपको मेरा नमस्ते और सभी गुरु परिवार को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पिताजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं डेट बताना भूल गई। आज 25 अक्टूबर है 2025, दिन शनिवार है। और अभी अभी कल भी हमने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, और आज अभी अभी जो है 11:36 हो रहा है। और गुरु जी का यूट्यूब पर हम देख रहे थे कि देख कर ही सोते हैं, तो अभी तुरंत ही गुरु जी का मैसेज आया कि आंटी तू मेरी लाडो रानी है, तू मुझसे बहुत प्यार करती है, तो आज एक शुक्राना सत्संग शेयर कर और अपनी ब्लेसिंग ले जा, और इधर उधर ना देख, मैं तुझे ही देख रहा हूँ, इग्नोर करके आगे मत बढ़ना। तो फिर हमें तो बहुत हंसी आ रही थी और लग रहा था गुरुजी कितना प्यार करते हैं। तो अभी तुरंत ही फिर हमने कहा कि शुक्राना हम करते हैं। ये शुक्राना सत्संग धनतेरस वाले दिन का है। संगत जी, दोपहर के टाइम मैं अपनी बालकनी से कपड़े उतार रही थी, तो उसी समय बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने अपना दर्शन दिया। और बटरफ्लाई इतनी प्यारी, ऐसी बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी। पता है, बिल्कुल एक कलर में, पर्पल कलर में बटरफ्लाई, और बड़ी सी बटरफ्लाई आई और मेरे पास से होके और चक्कर काट के और निकल गई। उसके बाद येलो कलर की बटरफ्लाई, ये तो हो गया दो कलर की बटरफ्लाई मैंने देखा और बहुत सारी ब्लेसिंग। और मैंने उसी समय बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद जब शाम हुआ और हम लोग शॉपिंग करने गए, तो जिस ज्वेलर की दुकान पे हम लोग जाते हैं, साईं ज्वेलर्स है, तो उनकी दुकान में जब हम लोग ख़रीद रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की, येलो और ऑरेंज में ऐसी ऐसी प्रिंटेड बटरफ्लाई, बहुत सारी बटरफ्लाई उनकी दुकान के अंदर, जबकि वो दुकान खुली सी है और बहुत अच्छा है उनके यहाँ का डेकोरेशन। और वो बटरफ्लाई ऊपर ऊपर ऐसे पूरा उड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और फिर हम लोगों ने शॉपिंग की और कर कर जय गुरु जी बोलते ही शॉपिंग भी किया, और इतना अच्छा लग रहा था। गुरु जी साथ साथ गए, अच्छी से हम लोगों को एक चेन दिलवाई और सिक्का दिलवाया, और भी कपड़े की ख़रीदारी करवाई। मतलब इतने प्यार से गुरुजी अंग संग रहते हैं, और बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। और फिर शॉपिंग करवा के और हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोगों ने चाट वगैरह खाया। गुरुजी के लिए भी हम लोग दही बड़ा लेकर गए वहाँ पे, तो हम लोगों ने उस दिन गुरुजी को भोग लगाया, दही बड़े का भोग लगाया। और बहुत अच्छे से धनतेरस का त्यौहार हम लोगों ने मनाया। घर पर आकर लक्ष्मी जी की आरती और पूजन भी किया गुरु जी के साथ ही। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं शुक्राना अभी इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं कि आज जो शब्दों का इस्तेमाल गुरुजी ने किया है, लाडो रानी, तो मेरी प्यारी लाडो रानी है, सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और सुमन आंटी, गुरुजी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और अच्छी ब्लेसिंग दे, आपको अच्छी सेहत दे। ये सुमन आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा गुरुजी के श्री चरणों में। सभी संगत परिवार को मेरा नमस्कार। सुमन आंटी आपको भी नमस्कार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से गुरुपा का शुक्राना अदा कर रही हूँ। मैं शाम को 6:20 में गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ और दिन आज शनिवार है। गुरुपा के काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर रही हूँ। गुरुपा मुझे रोज़ कहते हैं शुक्राना कर तू शुक्राना क्यों नहीं कर रही है? तुझे मैं देने में टाइम नहीं लगाता हूँ, तू शुक्राना नहीं करती है। तो गुरुपा मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मैं पहले से बहुत मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब आप जानते हैं। ऐसे सब कुछ ठीक हो रहा है गुरुपा, लेकिन मैं जब शुक्राना करने का मन बनाती हूँ मुझसे शुक्राना नहीं होता है। मेरी पूजा पाठ भी आजकल नहीं हो रही, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए गुरुपा कि मैं आपकी बात नहीं सुनती हूँ और मैं शुक्राना आपके कहने पर भी मैंने आपको शुक्राना नहीं करी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आज भी गुरुपा ने मुझे सुबह से शाम तक जितने मैसेज देखती हूँ, जितने सत्संग सुनती हूँ, गुरुपा मुझे शुक्राने के सत्संग सुनाते हैं कि शुक्राना कर, मैसेज में देते हैं तो शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं आज आपका शुक्राना कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप से शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे 2 शुक्राने हैं। मुझे गुरुपा मुझे शुक्राने याद नहीं है बिल्कुल भी। गुरुपा मुझे कहते हैं कि तेरे बहुत से शुक्राने बाकी है, तू शुक्राना कर। गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे हैं शुक्राने। अपनी बच्ची को क्षमा कीजिएगा अगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहे तो। मेरे साथ एक दिवाली वाले शुक्राना मुझे मैं सुनाऊंगी और एक मेरे साथ मेरे अंकल जी का है कल का शुक्राना। तो शुक्राना ये है, दिवाली वाले दिन गुरुपा हमारे घर में दर्शन दिए। पिछली दिवाली में भी गुरुपा आए थे और इस बार भी आए, लेकिन इस बार गुरुपा ने 3 दिन मेरे घर दिवाली के 3 दिन तक रहे। दिवाली के दिन ही आए थे, मुझे पता नहीं था, मैं सो चुकी थी और मुझे सुबह पता चला कि गुरुपा आए हैं। और उससे पहले रात में मैसेज आया था कि तेरे घर आऊँगा और मैं और माँ लक्ष्मी आएंगे, तेरे पूरे घर में चक्कर लगाएंगे और तेरे घर में सुख शांति बरकत धन सम्पत्ति सब देकर जाएंगे। तो गुरुपा ने अपना वादा निभाया और गुरुपा आए और गुरुपा अपने जहाँ गुरुपा की स्वरूप है वहाँ गुरुपा विराजमान हुए तितली स्वरूप में और पूरे घर में चक्कर लगाए गुरुपा ने। और फिर दूसरे दिन मेरे रूम में भी गुरुपा आए, मम्मी के भी रूम में आए जहाँ गुरुपा का स्वरूप है और मेरे भाई के रूम में भी, बाथरूम में, किचन में, हर एक जगह में, आंगन में गुरुपा घूमे। और मेरी बहन की बेटी के माथे पे भी तितली बैठी। कोई कष्ट था शायद गुरुपा सुना तो रहे थे लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और दिवाली के दिन बिल्ली हमारे घर में हमेशा आती है, हमेशा, लेकिन दिवाली के दिन नहीं आती, वो छत पे ज़रूर आती है लेकिन नीचे नहीं आती है। लेकिन इस बार दिवाली के दिन हमारे घर में बिल्ली भी आई थी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। बोलते हैं बिल्ली का आना शुभ होता है दिवाली के दिन। और दूसरा शुक्राना मेरे होने वाले अंकल जी का है कि कल मेरे को गुरुपा ने सत्संग सुनाया एक आंटी जी का कि उनके हस्बैंड का 4 चक्कर से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन उनके अंकल जी को एक खरोच तक नहीं आई थी। और वो सत्संग मेरे को गुरुपा ने बहुत पहले भी सुनाया था और आज मुझे कल भी गुरुपा ने सुनाया। और मेरे होने वाले अंकल काम से बंगाल गए हुए थे, तो
मैं सुनी, लेकिन मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ कि ये सत्संग तो मेरा सुना हुआ ही है, तो गुरुपाद शायद ऐसे ही सुना रहे हैं मुझे, पूरा सुन लेती हूँ। तो मैं उसे थोड़ा रोक कर सुनी, लेकिन पूरा सुनी मैं उसे। फिर उसके बाद मैं हाँ, फिर रात मैंने उनको फ़ोन करा, तो वो बोले कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब हम लोग निकलेंगे। तो क्या हुआ, यही बज रहे थे कितने, रात के 10 बज रहे थे, 10 बजे मेरी बात हुई थी। फिर मैंने एक बार कॉल करा तो नहीं उठाया, दूसरी बार कॉल करा नहीं उठाया, तीसरी बार 2 बार कॉल किया नहीं उठाया। पौने फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं पौने 11 बजे से लगातार फ़ोन करती रही। मुझे भी गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। मैं तो पूछने के लिए फ़ोन उठा रही हूँ कि आप कहाँ पहुँचे, नहीं पहुँचे। फिर वो फ़ोन उठाए नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ। मुझे सुबह पता चला कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बस ने टक्कर मारी। गाड़ी आगे से जिस सीट पे वो चला रहे थे उसी सीट की तरफ से टक्कर मारी। लेकिन उनको किसी को कुछ नहीं हुआ, और भी 4 लोग थे उसमें। वो गुस्सा मेरे पे ही कर रहे थे बिल्कुल। हुँ, तो मैंने कहा उसके फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया था, इसीलिए कि ऐसा कुछ होने वाला था, तो गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया। और मेरे यही सुबह मेरे पास मैसेज है नीम करोली बाबा का, कि 2-4 दिन तक उसे ड्राइविंग करने थोड़ा धीरे बोल संभल के चलाए। तो इसके लिए भी गुरु पाप को शुक्राना है। मैंने वो मैसेज उनको सेंड किया है, और मैंने उनको फिर सुबह बताया कि मुझे गुरुपा का आपका सत्संग आया था, मैं आपको नहीं बताई, क्योंकि वो ज़्यादा इतना विश्वास नहीं करते, मानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने ज़्यादा बताना उनको ज़रूरी नहीं समझा। गुरुपा के बहुत से मैसेज आते हैं, वो इग्नोर मार देते हैं, इसलिए मैं नहीं भेजती हूँ। तो मैंने वो नीम करोली बाबा का उनको सत्संग ये मैसेज भेजा। तो मेरे अंकल जी के लिए तरफ से गुरुपा, आपकी बेटी शुक्राना करती है कि मेरे होने वाले सुहाग को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपको मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा के मैसेज मेरे पास बहुत अच्छे आ रहे हैं, कि तू इतना टेंशन क्यों लेके रखी है, अब तेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और मेरे अंकल जी के लिए भी कि तेरे अंकल जी का इतना पैसा होगा। मुझे मैसेज बोलने में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे याद नहीं है। बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं, उसके लिए गुरु का मैं शुक्राना करती हूँ आपका, अनंतम तब शुक्राना। और एक मेरी सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी, जो गुरुपा पूरी कर रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे अभी मना करा है, जिस दिन गुरुपा का हुक्म होगा मैं वो शुक्राना करूँगी। और वो धीरे-धीरे गुरुपा काम कर रहे हैं उसमें भी। मैं थोड़ा टेंशन ले लेती हूँ तो गुरुपा मुझे समझाते हैं। मैं कल गुरुपा से थोड़ा लड़ भी ली थी रात में, कि वो मेरी बात नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा मेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी जो दे रहे हैं, उसका शुक्राना मैं बहुत जल्द करूँगी। और अ, मैं अब इसी के साथ अ, मैं सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरुपा जैसे मेरा साथ दिया है, सारी संगत का साथ देना गुरुपा। जैसे मेरा हाथ पकड़ा है, सारी संगत का हाथ पकड़ के रखिएगा गुरुपा, और सबका भला कीजिएगा गुरुपा। और सबको सबकी इच्छाएँ पूरी कीजिएगा गुरुपा। बस आपकी बेटी को इतना नहीं आता है, किस ढंग से बोलते हैं। मैं जब झगड़ा करती तो गुरुपा मुझे ही डाँटते हैं, क्योंकि मुझे भी कभी-कभी लगता है कि शायद मैं ही ज़्यादा बोल देती हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना गुरुपा के मंदिर जाप से समाप्त करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। मैं 10:20 में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आपने सत्संग में सुनवाया है कि तुम्हारे बच्चों की तुम चिंता मत करो, अब उनकी डोरी मेरे हाथ में है, मैं सब ठीक कर दूंगा और उनकी किस्मत अब घोड़ों की तरह दौड़ेगी। इसके लिए कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, लाखों बार शुक्राना। और गुरु जी, आपने ये भी कहा है तू सत्संग सुनती रहे, तेरे हर कष्ट मैं काट लूँगा। इसके लिए भी कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना 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 गुरु जी। और गुरु जी, आपने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। कोटान कोट शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और ये भी कहा है कि तुम सबकी मैं सेहत ब्लेस कर दूंगा, कोई रोग से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। आपने एक सत्संग में ये भी बताया है कि तू अदरक, तुलसी, दालचीनी और गोल मिर्च ये डाल के काढ़ा पी। मैं ठीक है गुरु जी, आज ही मैं पीऊँगी। इसके लिए भी कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। इसी तरह हमारे साथ अंग संग सही होएगा हमेशा और हम सबको ब्लेस कीजिएगा। मेरे दामाद बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटे की तरफ से और मेरी तरफ से आपको कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आपका जितना मैं शुक्राना करूं कम है। और गुरु जी, ये सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा। मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में हूँ, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे सुमन आंटी ने मेरे 2 सत्संग शेयर किए हैं, उसके लिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। सुमन आंटी, मेरे ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। मैंने जो जो भेजे हैं, एक मेरी लड़की के लिए भी भेजा था जो दिवाली में वो जलने वाली थी, लेकिन गुरु जी ने उसे बचा लिया, वो ज़रूर ब्लेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी। और अगर मेरे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। सत्संग से संगत से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, सुमन आंटी से भी मैं क्षमा याचना मांग करती हूँ। और गुरु जी, आप हमेशा हमेशा हमें अच्छी बुद्धि दीजिएगा, बच्चों को अच्छी बुद्धि दीजिएगा, कभी भी हमारे दिल में कभी घमंड ना आए और ना हम किसी का दिल दुखाएं। ये सबके लिए आपसे विनती है गुरु जी, और हम सबका भला कर सकें, इतनी औकात हमारी बना दीजिएगा गुरु जी, क्योंकि हम सेवा करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, वो हम जरूर कर सकें गुरु जी। मैं अपने सत्संग को अभी यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी मुझे अमृत वेला भी ज़रूर बख्शिए। और गुरु जी, अब मैं आपके महामंत्र के साथ शुक्राना सत्संग अभी यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे और पूरे संगत परिवार को भी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे और सारी नेगेटिविटी को उनके जीवन से दूर कर दे। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु पापा जी। सॉरी, मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। आपको पता है नेगेटिविटी सी रहती है, कुछ बोझ सा रहता है और या मैं भूल ही जाती हूँ। तो संगत जी, 2-3 दिन से, कल से गुरु पापा ने कहा कि बच्चे शुक्राना कर, शुक्राना कर।
तो जब भी कोई बड़ा संकट आता है संगत जी, कुछ भी नेगेटिविटी हावी हो रही होती है या होनी होती है, तो उससे पहले ही गुरु पापा कहते हैं कि बच्चे शुक्राना कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो संगत जी, गुरु पापा जी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। तो मैं आत्मा अपने रूह से, दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे जीवन में आने के लिए गुरु पापा जी, और मुझे इन सारी नेगेटिविटी से बचाने के लिए। तो संगत जी, जैसे कि अभी भी नेगेटिविटी का असर होता रहता है, वो लोग नहीं हटते हैं संगत जी, लेकिन मैं अब नहीं डरती हूँ संगत जी। अब गुरु पापा मेरे पास है, मेरे साथ है, हर घड़ी पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और संगत जी, जैसे कि कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं, लेकिन अब उन सब चीज़ों का असर मुझ पे नहीं होता है संगत जी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नील पड़ते थे सारी टांगों में, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी, पेन होती थी। अब वो नहीं होती है। तो ऐसे ही आजकल भी कुछ हो रहा था, नील तो था टांग में, इतना बड़ा नील था संगत जी। फिर मुझे पता चलता है, मैं जहाँ भी नील होता है मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ। तो फिर नेगेटिविटी करने वालों का तो पता ही है संगत जी। तो गुरु पापा सत्संग सुनाते हैं कि बच्चे, जो भी ये नेगेटिविटी करने वाले हैं, इनको मैंने बैकफायर कर दिया है, ये नहीं हट रहे हैं, इनका जो भी था वो मैंने इन्हीं को वापस कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। कल भी गुरु पापा ने कहा कि शुक्राना कर बच्चे, शुक्राना कर, तो मैं नहीं कर पाई। मेरी लेफ़्ट बाजू में बहुत दर्द हो रहा था, दिन से लेके दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था पीछे किसी ने ब्रेक जैसे लगा दी है। और संगत जी, जैसे ही मैंने शाम के टाइम, जैसे संध्या वेला में गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, उसको किया, तो वो दर्द खुद ब खुद संगत जी ठीक हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं अपने गुरु पापा का शुक्राना करूँ। तो संगत जी, जैसे कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ही आप लोग भी मंत्र जाप किया कीजिए, और उस जगह पे जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी दर्द हो, कुछ भी हो, तो मंत्र जाप करके उसको आप उसके ऊपर मंत्र जाप करके हाथ फेरते रहिए संगत जी। तो मैंने तो हाथ भी नहीं फेरा था संगत जी, बस मैंने जाप किया था तो मेरी दर्द ठीक हो गई थी। लेकिन संगत जी, कुछ ही 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, जैसे मैं बाहर गई वॉशरूम, उसके बाद ये दर्द फिर से शुरू हो गया था संगत जी। तो गुरु पापा जी ने शायद इसीलिए कहा होगा कि कोई नेगेटिविटी हावी होने वाली है ज़्यादा, तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ अपने गुरु पापा जी से। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पापा जी, आपने मेरे इस दर्द को ठीक किया, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और आप और भी अभी भी ठीक कर रहे हो और कर दोगे, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा। गुरु पापा, जब से आप जीवन में आए हो, तब से मुझे इन सब चीज़ों से बहुत राहत मिली है, तो इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबू। और संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझ पे हमारे यहाँ डेथ हुई थी, तो बहुत सारे नेगेटिविटी के प्रभाव हुए थे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ भी आई थी जो कि कलेश करती हैं और कर रही हैं, चारों तरफ करती है, चाहे वो मायके परिवार के साथ हो, चाहे ससुराल पक्ष में तो होती ही रहती है, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम है। तो संगत जी, मैं गुरु पापा जी से ये अरदास भी करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ कि उन सब चीज़ों से आपने मुझे निकाला है, और जो परिस्थिति आई हुई है उससे भी आप अपनी बच्ची को सेफली बाहर निकालोगे गुरु पापा जी। और अपनी बच्ची को जो ये प्रॉब्लम होती है, गुस्सा बहुत आ जाता है संगत जी। वैसे तो मैं शांत रहती हूँ, लेकिन जैसे ही ये नील पड़ते हैं, ये नेगेटिविटी हावी होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कोई भी बात होती है, कुछ भी मैं बोलती हूँ, तो लोग उसका उल्टा ही मतलब लेते हैं संगत जी। मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो नहीं समझते हैं, वो उल्टा ही मतलब निकालते हैं उस चीज़ का।
तो गुरु पापा जी आप इस परिस्थिति से भी अपनी बच्ची को निकालोगे जैसे कि आज दिन तक आप निकालते आए हो। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अपनी बच्ची का साथ देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और संगत जी, कल मैं बहुत उदास थी तो गुरु पापा ने कहा कि उदास क्यों रहती है, तेरा सारा काम मैंने कर देता है, शुक्राना तो कर, कदे तो मुस्कुराया कर। तो गुरु पापा जी, जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो कैसे मैं मुस्कुराऊँ, आत्मा अंदर से दुखी होती है गुरु पापा जी, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हो तो आत्मा बहुत हल्की और खुश हो जाती है, तो स्वतः ही मुस्कुराना आ जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अपनी बच्ची की मुख पे मुस्कुराहट लाने के लिए, इस नेगेटिविटी से निजात दिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। अपनी बच्ची के साथ अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही बहुत जो कलेश हुआ था, कुछ भी परिस्थिति आई थी, उसको मैं डिटेल से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप सभी संगत परिवार के लिए शायद गुरु पापा ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी कोई आपके ऊपर ऐसी वैसी परिस्थिति आती है तो शुक्राना अवश्य कीजिए। कोई भी कैसा भी कुछ भी परिस्थिति हो, तो जब हम गुरु पापा जी का शुक्राना करते हैं तो गुरु पापा जी हमें एक पल में उस परिस्थिति से निकाल देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। आपकी बच्ची बहुत बहुत खुश है। अभी अमृत वेला है, उठी हुई हूँ तो आवाज़ थोड़ी ऐसी है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरु पापा जी, मेरे शंकर जी महाराज, मेरे शिव बाबा मेरे साथ है, अंग संग सहाय है। अपनी बच्ची की उंगली थामे हुए है, उंगली ही नहीं हाथ पकड़ के अपनी बच्ची को चला रहे हैं। मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे साथ अंग संग सहाय रहने के लिए मेरे गुरु पापा जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आपकी नातिन की तरफ से भी, मायके परिवार की तरफ से भी सबको सेफ रखना गुरु पापा जी, सबको नेगेटिविटी से बचाना, सबकी नेगेटिविटी को दूर करना, सबको ठीक करना गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अपने गुरु मंत्र के साथ आप सब लोग भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, एक बात बोलना भूल गई थी कि आप आज भी मैं गाँव जा रही हूँ अपने भाई के साथ, तो मेरे भाई के ऊपर, मुझ पे आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अंग संग सहाय रहना, साथ ही चलना और साथ ही आना गुरु पापा जी, और उस नेगेटिविटी को हम लोगों से दूर रखना, पहले ही दूर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र जी का शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा किस्मत वाली समझदी हाँ कि मैं गुरु जी की संगत का हिस्सा बनी हाँ, पर ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 34 ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ।
पर संगत जी फिर दूसरे पल च मैं भी सोचदी आं कि चल रब जो करदा ओह् ठीक करदा ऐ, क्योंकि मैं गुरु जी दा अगर मैं देख लैंदी ते मैं उन्हां दा विछोड़ा नहीं सी बर्दाश्त कर सकदी। मैं हल्ले भी उन्हां दी समाधि दे दर्शन नहीं करदी, ना मैं समाधि दिवस दे कुछ अटैंड करदी आं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मनदा मैं गुरु जी नूं इस तर੍ਹਾਂ उस ते किते लेटेआ होया इस तर੍ਹਾਂ देखां। मैं सतसंग ज़रूर सुनदी आं, बट मेरे लिए गुरु जी हल्ले भी है, गुरु जी ने कोई झोला नहीं छोड़िਆ। मैं गुरु जी ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੁੱਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨੇਕ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 40-45 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਲਈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਗਿਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਗਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭੋਗ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲੱਤ ਤੱਕ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੱਪ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਔਰ ਪੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨੋ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। माफ़ी चाहती हूँ शुक्राना करने में देरी के लिए। गुरुपा आपकी बहुत नालायक बेटी हूँ, आलसी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपने मेरे बच्चों के मेरे कष्ट काटे, हमारी दिवाली के
5 डेज बड़े आराम से बीते, खुशी खुशी। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे ऊपर संकट आए लेकिन आपने उनको काट दिया गुरुपा। आपके मैसेज ने बताया कि तेरे परिवार में अकाल मृत्यु से मरे सदस्य की आत्मा को प्रत्यक्ष किया जा रहा है। यह अमावस तेरे लिए बहुत भारी है, यह आत्मा तुझे जीने नहीं देगी। तुरंत ये सत्संग सुन, उसकी मुक्ति हो जाएगी। आपने सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट काटे, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और ये सत्संग भी 777 की ब्लेसिंग के साथ भेजा था, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक मैसेज में मेरे बच्चों का कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि हम गुरुपा से मिलने से पहले कैसा जीवन जी रहे थे। मेरे नहीं, आपके नाती को हर तरफ से रोका जा रहा है, उसकी पढ़ाई में बाधा डाली गई, उसके इंडिपेंडेंट होने में, वो वॉकर से चलता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है। जो उसकी विल पावर को दबा करके उसको डिप्रेशन में डालने की कोशिश, बुरी आदतें डालने की कोशिश। लेकिन भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा रही कि पूजा पाठ, देवी जी के कवच, राम रक्षा स्तोत्र और शिवजी जी के रुद्राष्टकम, चंद्रशेखर अष्टकम सब रोज सावन के पूरे महीने और बाकी पूजाएं मैं रोज नियमित रूप से करती हूँ। जो हम बचते रहे, बहुत कुछ किया मेरे बच्चों के ऊपर, रात रात को इनके ऊपर हाथ रख 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 कर देवी कवच पढ़ना, ये मेरी दिनचर्या रही सालों साल। और अपने को भी बचाना। लेकिन मेरे पति अंकल नहीं बच पाए, क्योंकि मैं ये समझ रही थी कि ये तो इनके घर के हैं, मगर ऐसा एहसास होता है कि वो मेरे लिए किया गया था। गिरफ्त में शायद ये आ गए और नहीं रहे। संगत जी, तब तक गुरुपा की शरण हमें नहीं मिली थी। गुरुपा के आशीर्वाद से ये दिवाली हमारी ठीक ठाक बीत गई। परेशानी को गुरुपा ने आड़े हाथों ले लिया, जो हमें बराबर एहसास हुआ उसका। गुरुपा ने मैसेज के द्वारा बताया भी कि तेरे बच्चों को, तुझको बचाया, इनका कष्ट काटा है। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शादी के समय में रसों चखाने की रस्म में ही ग्रसित हो गई थी। आज से 39-40 साल पहले मैं इंडिया की फर्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। ससुराल वालों ने कहा हमें सर्विस नहीं करवानी, मैंने सर्विस छोड़ दी। तब से ही तरह तरह के प्रयोग होते रहे मेरे ऊपर। शादी के समय हम दोनों एक दूसरे से कोई संबंध ना हो, ऐसा किया गया। लेकिन संगत जी, भगवान से बड़ा जादूगर कोई नहीं। सारी बातें बताना तो पॉसिबल नहीं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। तो उस समय मम्मी के घर में एक वास्तु शास्त्री आते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 बार भागवत पढ़ो, अपने ऊपर, अपने घर में दीपक जलाकर, कोई समय की पाबंदी नहीं, बस शुद्धता हो और दीपक जला लो, बस ये कंडीशन थी। कुछ उससे फिर उन्होंने ही कहा कि गणेश चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, आगे जल भर लोटा रखकर पढ़ो और उसमें फूंक मारो। हर चालीसा पढ़कर उसमें फूंक मारो और वो पानी अपने कमरे में छिड़को और पियो भी। ये सब कार्य किए। उसके बाद संगत जी, 3 साल बाद मेरे बिटिया हुई। मैं भगवान जी के आगे हर समय यही प्रार्थना करती थी, हे माता रानी, हे भगवान, मुझे जीने का सहारा दे दो, मुझे जीने का सहारा दे दो, बस यही मेरी प्रार्थना थी। बिटिया की छठी वाले दिन मेरे पल्ले की पूजा करके दी जाती है, जो पूरी, मेथी, आलू, हरीरा गायब कर दिए और मेरी बेटी ने आधी रात को आंखें पलट दी। मुझे कुछ नहीं सूझा संगत जी। मैंने छोटा पॉकेट हनुमान चालीसा जो मेरे पास ही रहता था, उसे ही उसके सीने पर रख दिया और वो एकदम ठीक हो गई विद इन सेकेंड। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए फिर नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी। शक्ति एक, रूप अनेक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके जीवन में आने से हमें बहुत ज्यादा राहत हो गई है, नहीं तो ये चीजें हर पल हमारे ऊपर हावी रहती थी और हम बस यही पूजाएं करते रहते थे। तो यही सोचते कि बाहर जाए तो कैसे, बाहर मतलब अब ये तो एक डिवोशन चाहिए प्रॉपर, तब वो चीज हटती है। ऐसे होता था हमारा हाल जैसे गुड़ पे से मक्खी उड़ाई, हमने कवच पढ़ना शुरू किया मैंने, और वो मक्खी उड़ गई, फिर अगर मैं नींद में हो गई तो फिर वो आ गई वापस। लेकिन गुरुपा तो ऐसे हमें उन्होंने दिखाया कि जैसे वो एक, क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं, कि हम साया बनकर, उन्होंने उसको एक बार तो बिल्कुल साक्षात ऐसा इसका एहसास हुआ है कि किसी चीज को उन्होंने बालों से पकड़ लिया, चित्कार करती हुई चिल्लाती हुई वो मेरे पास से गई है।
जो अभी रिसेंट का ही है ऐसा। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी चरण शरण में रखना मेरे मेरे बच्चों को। हाँ, मेरी एक अरदास भी है गुरुपा कि मेरा बच्चा ठीक कर दो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वो बिल्कुल ठीक है, बेहद सुंदर सोना है, वो तो आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। उसको इंडिपेंडेंट कर दो, वो वॉकर छोड़ दे और इंडिपेंडेंट चलने लगे अपना। जो हर पल लगता है कि आज छोड़ेगा, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा, बहुत बड़ा हो गया है। गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा परिवार आपकी शरण में है गुरुपा। अब मैं समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग में आपसे फिर बात करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी सुमन आंटी जी, जय गुरु प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। मेरा आज का सत्संग ये है कि आज मैं बहुत 4-5 दिनों बाद मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि त्योहार के दिन थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो उसके लिए मैं गुरुजी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ और पूरी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ। और सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे संगत जी आप माफ़ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरा आज का सत्संग ये है कि आज गुरुजी ने मुझे ब्लैक बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई और रेस्ट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। ब्लैक बटरफ्लाई तभी दिखाई देती हैं जब गुरुजी हमारी नज़र उतारते हैं, तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी क्या हुआ ना कि हमने उधर भाई दूज के दिन मुझे अपने नेटिव प्लेस जाना था, तो अपने हस्बैंड से पूछा तो वो कहने लगे नहीं शॉप में काम है तो आप लोग बस में चले जाओ। तो मैं तो चलो मान गई, मेरी बेटी नहीं मान रही थी, चलो उसको भी मैंने मना लिया। तो मैंने गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप है अपने साथ लिया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ही हमारे साथ चलो, हमें सेफली से वहाँ पे पहुँचाना और सेफली से घर वापस ले आना। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से हमें बस में हमें किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं आई। गुरुजी ने हमें सेफली से हमारे घर पहुंचा दिया। वहाँ पे मेरी सारी बहनें आई हुई थी, हमने भाई दूज बहुत अच्छी तरह से मनाया। भाभी भी जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हो गई हैं। उन्होंने भी हमारा बहुत वेलकम किया, बहुत अच्छी तरह से हमारा स्वागत वगैरह किया। तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। और मेरी मम्मी और मेरी भाभी की इतनी बनती नहीं है, तो लेकिन बहुत अच्छी तरह से उनकी भी आपस में कोई फाइट नहीं हुई, बड़ा अच्छा माहौल था। और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि वापस बस में ना बहुत इरिटेशन सी होती है, मेरी बेटी का मन भी ख़राब होता है। तो मैं अपने मन में ही सोच रही थी कि हाय मेरे हस्बैंड आ जाए ना लेने के लिए। और मैंने इतना ही कहा और हम बस के लिए तैयार थे। 2:30 पे बस चलने वाली थी। मैं और मेरी बेटी जैसे ही निकले तो मेरे हस्बैंड गेट के पास हमें लेने के लिए आ गए। तो इतना सरप्राइज़ दिया हमारे हस्बैंड ने, लेकिन ये सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड की तरफ से नहीं था, ये मेरे गुरुदेव की तरफ था। क्योंकि गुरुदेव नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बस में जाए, वो चाहते थे कि उनकी बेटी एंजॉय करती हुई अपनी गाड़ी में जाए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की वड्याइयाँ, गुरुजी की महिमा का हम तुच्छ प्राणी क्या गान करें, हम नहीं गान कर सकते। इनकी बहुत बड़ी वड्याइयाँ हैं और बहुत बहुत महिमा है। गुरुजी कैसे हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं। मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं गुरुजी कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने बहुत छोटे में काट दिया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप मेरे बुद्धि के द्वार खोलो, मेरी मेमोरी पावर को शार्प करो। मैंने इतनी बातें सोची होती है कि मैं बोलूँगी सत्संग में, मुझे सब कुछ भूल जाता है गुरुजी। गुरुजी आप मेरी अरदास पूरी करो। और आज आपकी बेटी की एक बहुत बहुत बड़ी अरदास है जो आज आपको पूरी करनी है गुरुपा। आज आपको अपनी दोती के सपने में आकर उसकी सर्जरी करनी है और उसे एकदम से ठीक करना है गुरुजी। आपको आज चमत्कार करना है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, अपनी दोती को एकदम से ठीक कर दीजिए।
गुरुजी आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आप दे रहे हो उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी बार-बार मैसेज करती है कि तू बहुत बोली, अपने दिल की बात सबको बता देती है, लेकिन कोई भी तेरे तेरे फ़ेथफुल नहीं है, वो तेरी बातें इधर की उधर करते रहते हैं। तो उसके लिए गुरुजी मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं हूँ ही ऐसी, जो कोई प्यार से बात करता है मैं उसके आगे अपना दिल खोल देती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे साफ-साफ मना किया है कि अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करनी है। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी बेटी को हर वक़्त चिंता करने के लिए, हर वक़्त उसको फ़ोन करने के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। संगत जी एक कोई बड़े मंदिर, पता नहीं बड़े मंदिर के नाम से एक सत्संग आता है, वो बहुत डरावने थंबनेल डाल रहे हैं कि तेरे घर में किसी की मौत होने वाली है। उसका जो अल्फ़ाबेट है वो पी से शुरू होता है, कभी एस से शुरू होता है, कभी आर से शुरू होता है, कभी ए से शुरू होता है। जिसके कारण बहुत ज़्यादा इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, क्योंकि संगत जी 24 घंटे तो मैं सत्संग नहीं सुन सकती हूँ, कभी नहीं भी सुना जाता है। लेकिन ये जो थंबनेल है ना वो बहुत बेचैन कर देती है, मेरी घबराहट बढ़ जाती है। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ, अगर तो ये सच में सच्चे वाले सत्संग है तो ही मेरे सामने लाना, नहीं तो आज के बाद ये झूठे और फ़रेब वाले जो भी सत्संग है मेरे सामने मत लाना गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे पति के काम को भी ब्लेस करो और हमें हेल्थ भी ब्लेस करो। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहना, कभी दूर मत जाना। आपके सहारे से ही ये ज़िंदगी कट रही है गुरुजी, नहीं तो इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। गुरुजी बार-बार आ रहा है कि तेरे 10 दिन बहुत भारी हैं, तो गुरुजी आपने ही मेरे 10 दिन कटवाने हैं और आपने भारी दिनों को एकदम से हल्का कर देना है। उसके लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, दिन-रात का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। शुक्राना सुमन आंटी जी, गुरुजी आपको खूब-खूब ब्लेस करे। संगत जी मुझसे ये सत्संग करते हुए जो भी भूल हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ करें। मैं अब ये सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ और दीपावली की बहुत भैया दूज दीपावली वो तो अब हो गए हैं, लेकिन उसकी बहुत-बहुत सबको मुबारकबाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।